اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کا میلہ سج گیا۔ پولنگ کا عمل صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ صدر کے عہدے سمیت 3 نشستوں پر 7 امیدوار مد مقابل۔ صدر کے لیے ثاقب اکرم گوندل اور آصف نسوانہ میں مقابلہ ہوگا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ بار کے انتخابات کا میلہ سج چکا ہے۔ پولنگ کا عمل صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ صدر کے عہدے سمیت 3 نشستوں پر 7 امیدوار مد مقابل ہیں۔ صدر کے لیے ثاقب اکرم گوندل اور آصف نسوانہ میں مقابلہ ہوگا۔ 9 بجے پولنگ کا عمل شروع ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے سالانہ انتخابات ہیں، اس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پولنگ کا عمل صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ صدر کے عہدے سمیت 3 نشستوں پر 7 امیدوار مد مقابل ہیں۔ صدر کے لیے ثاقب اکرم گوندل اور آصف نسوانہ میں مقابلہ جاری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کا میلہ سج گیا۔ پولنگ کا عمل صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ صدر کے عہدے سمیت 3 نشستوں پر 7 امیدوار مد مقابل ہیں۔ صدر کے لیے ثاقب اکرم گوندل اور آصف نسوانہ میں مقابلہ ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشن بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پولنگ کا عمل صبح 9 بجے شروع ہوگا، اور اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز محمد اشفاق سے۔ اشفاق بتائیے۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات آج ہوں گے۔ صدر کے عہدے سمیت 3 نشستوں پر 7 امیدوار مد مقابل ہیں۔ صدر کے عہدے کے لیے عاصمہ جہانگیر گروپ کے صدارتی امیدوار ثاقب اکرم گوندل اور حامیدان گروپ کے آصف نسوانہ میں مقابلہ ہوگا، جبکہ حقیقی کی نشست پر 2 امیدوار فاروق الیاسیمہ اور قاسم اعجاز قمرہ میدان میں ہیں، جبکہ نائب صدر کی نشست پر 3 امیدوار شیخ بن یوسف، عبدالرحمان رانجھا اور عبدالرزاق صدر مقابلے میں ہیں، جبکہ تمام سختی کی نشست پر خام بن شعیب تمبو بلا مقابلہ منفرد ہو چکے ہیں۔ اگر ووٹر کی بات کی جائے تو مجموعی طور پر 30,763 ووٹر بایو میٹرک سسٹم کے تحت رجسٹر ووٹر اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے، اور اسی طرح سے خواتین ووٹرز کی تعداد 2287 ہے، اور مجموعی طور پر 28,476 مرد ووٹر حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات 30,000 سے زائد ووٹرز بائیو میٹرک سسٹم کے تحت آج اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں گے۔ فنانس سیکٹری کی نشست پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب، جبکہ 3 نشستوں پر 7 امیدوار مد مقابل ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات 22 فروری کو انتخابی میدان سجے گا۔ فائنانس سیکٹری کی نشست پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب، جبکہ 3 نشستوں پر 7 امیدوار میدان میں ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے کل ممبران 44,232 ہیں۔ 30,763 ممبران بایو میٹرک سسٹم میں بطور ووٹرز رجسٹرڈ ہیں۔ انتخابی عمل کے لیے 7 بوتھ بنائے گئے ہیں، جبکہ ووٹنگ کے لیے 120 کمپیوٹر نصب ہوں گے۔ چیئرمین الیکشن بورڈ شہزاد احمد منڈ کا کہنا ہے کہ الیکشن کی تیاریاں مکمل ہیں، ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ ہم نے ضابطہ اخلاق بھی جاری کر دیا ہے، جس پہ بڑی سختی سے ہم عمل درآمد کروا رہے ہیں، اور میں یہ کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ چیئرمین الیکشن بورڈ نے مزید بتایا کہ بایو میٹرک سسٹم کے ذریعے 2,287 خواتین اور 28,476 مرد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 13,469 بار ممبران بایو میٹرک سسٹم میں رجسٹر نہیں ہیں۔ ہم نے اس کے لیے 7 پولنگ بوتھ قائم کیے ہیں، جس میں 120 جو ہیں وہ ہمارے اسٹیشنز قائم ہوئے ہیں، جن کے اوپر وہ الیکشنز ہو گئے۔ تو انشاءاللہ کوشش ہم کر رہے ہیں کہ بہت سموتھ قسم کا الیکشن ہو، اور وہ انشاءاللہ ہمارا بڑا سموتھ الیکشن ہوگا۔ اور پولنگ کا عمل صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا، جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کے باعث ماتحت عدالتوں میں تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ کیمرہ مین ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں رات گئے بوندا باندی اور بارش ہوئی۔ گزشتہ رات کی بارش کے باعث شہر کی فضا میں خنکی کا احساس بڑھ گیا۔ شہر میں آج بارش برسنے کے امکانات نہیں ہیں، اور لاہور ملک بھر میں فضائی آلودگی سے متاثرہ شہروں میں تیسرے نمبر پر رہا۔ سامعہ سعید سے مزید جانتے ہیں، بتائیے سامعہ۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے صوبائی دارالحکومت لاہور کے موسم کی، تو رات بوندا باندی کے باعث فضا میں خنکی کا احساس جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ باہر سردی کی شدت بھی محسوس کی جا رہی ہے، اور آج بھی سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج بارش برسنے کے جو ہیں وہ کوئی بھی امکانات نہیں، البتہ آج کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 11 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق تاحال ہوا کی جو رفتار ہے وہ 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے،
जबकि हवा में नमी का जो तनासब है वो 95% तक जा पहुंचा है। तो ये जो शहर लाहौर में गुज़िश्ता रात भी बारिश बरसी है, इससे जो है वो खुश सर्दी से फैलने वाली बीमारियां, खांसी, जुकाम, नज़ला जैसी बीमारियां जो हैं, इससे लाहौरियों को कुछ हद तक रिलीफ मिल जाएगा। अलबत्ता अगर बात की जाए तो फिजाई आलूदगी में भी जो है वो कमी रिकॉर्ड की जा रही है। आलूदगी के एतबार से आज लाहौर जो है वो पाकिस्तान में तीसरे नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शहर में स्मोक की जो मजमूई शरह है वो 151 रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरह अगर बात की जाए जौहर टाउन के इलाके की, माल रोड के इलाके की, तो वहाँ भी यही देखा जा रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 200 से कम ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो बारिश जो है ये शहर लाहौरियों पर जो है वो बड़े रहमत बनकर बरसी है, क्योंकि इससे जो है वो जहाँ पर बीमारियों से निजात मिल रही है वहीं जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। जी, आपका शुक्रिया सामिया। शदीद बढ़ती महंगाई में शहरी रोज़मर्रा की अशिया महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। मुर्गी गोश्त की फ़ी किलो कीमत 595 रुपये बरकरार। जिंदा ब्रायलर होलसेल 397, परचून रेट 411 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 2 रुपये महंगे, फ़ी दर्जन कीमत 272 रुपये हो गई। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 8040 रुपये में दस्तयाब। अब्दुल कादिर से मज़ीद जानते हैं, बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल पोल्ट्री मसनूआत की कीमतें जो है वो कंट्रोल नहीं हो सकी हैं, क्योंकि जो ब्रायलर की कीमतें हैं वो आज भी 595 रुपये फ़ी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई हैं। लेकिन ये सरकारी रिलीज में जो है कीमतें मुकर्रर की गई हैं। ओपन मार्केट में साफी गोश्त के नाम पर शहरियों को महंगा जो ब्रायलर गोश्त है वो फरोख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी ब्रायलर गोश्त के खरीदारी से महरूम है, क्योंकि 660 रुपये फ़ी किलो तक मार्केट में साफी ब्रायलर गोश्त जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। होलसेल जिंदा ब्रायलर की कीमत 397, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 411 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी है। आज मजीद 2 रुपये इजाफे के साथ कीमत 272 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर की गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 8040 रुपये की सतह पर पहुंच चुकी है और इस हवाले से पोल्ट्री ट्रेडर्स का ये कहना है कि डिमांड एंड सप्लाई में बिगाड़ की वजह से जो ब्रायलर है उसकी कीमतें मुस्तहकम नहीं हो रही हैं और अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में चलने वाली इलेक्ट्रिक बस का किराया 20 रुपये करने से सब्सिडी में इजाफे का इम्कान। किराया कम करने से सब्सिडी की रकम 50% होगी। पहले साल 14 करोड़ 89 लाख रुपए सब्सिडी देना होगी। हर साल सब्सिडी की रकम बतदरीज बढ़ती जाएगी। लाहौर की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें रवा दवा हैं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने इलेक्ट्रिक बसों का किराया 30 से 35 रुपए करने की तजवीज दी थी, लेकिन वजीर आला मरियम नवाज ने किराया 20 रुपए मुकर्रर कर दिया। बसें चलाने के लिए सब्सिडी का बोझ हुकूमत पर पड़ेगा। इलेक्ट्रिक बस का किराया 30 रुपए मुकर्रर करने से पहले सालाना 8 करोड़ 98 लाख रुपए सब्सिडी देना थी। किराया कम करने से सब्सिडी में 50% इजाफे का इम्कान है। 20 रुपए किराए से 12 साल बाद सब्सिडी की रकम सालाना 1 अरब रुपए से तजावुज कर जाएगी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने सब्सिडी से मुतालिक वर्किंग पेपर की तैयारी शुरू कर दी है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर के शहरियों के लिए बड़ी खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली मुकम्मल अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन ब्लू लेन के मंसूबे का ऐलान कर दिया। महकमा ट्रांसपोर्ट और LDA ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर काम शुरू कर दिया। मंसूबे को 3 साल में मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया। ट्रैफिक के बढ़ते मसाइल को देखते हुए हुकूमत पंजाब का शहर में एक और बड़े मास ट्रांजिट मंसूबे का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ब्लू लाइन मेट्रो ट्रेन को मुकम्मल अंडरग्राउंड बनाने का फैसला। वज़ीर आला की वज़ीर ट्रांसपोर्ट को फिजिबिलिटी और डिज़ाइन वर्क जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मुजव्वज़ा ब्लू लाइन मेट्रो ट्रेन 27 किलोमीटर तवील होगी, जो वैलेंशिया टाउन से शुरू होकर बाबू साबू चौक पर खत्म होगी। ये मनसूबा जौहर टाउन, फैसल टाउन, गार्डर टाउन, कलेमा चौक, गुलबर्ग, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, वैदत रोड और अल्लामा इकबाल टाउन जैसे अहम इलाकों से गुजरेगा। इस जदीद मेट्रो सिस्टम के जरिए यौमिया 2,50,000 से ज्यादा मुसाफिर आरामदेह और तेज तरीन सफरी सहूलत हासिल कर सकेंगे। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक ब्लू लाइन की लागत 600 अरब रुपए से जायद हो सकती है। 2016 में जापानी इदारे जायका और तुर्क इदारे उस्मानी ने ब्लू लाइन मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल की थी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। LDO को कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से मिली 22 गाड़ियां न जाने कहाँ गई, कोई रिकॉर्ड नहीं है। तसाबी इदारे भी बेखबर। सरकारी खजाने को 9 करोड़ 22 लाख रुपए का नुकसान हो चुका। आसमान खा गया या जमीन निगल गई,
LDA के शोबा इंजीनियरिंग को मेगा प्रोजेक्ट्स के तहत कॉन्ट्रैक्टर्स ने 22 गाड़ियां फराहम की, मगर ये गाड़ियां कभी भी अथॉरिटी के इस्तेमाल में ना आ सकीं। एहतसाब के दौरान इंकशाफ हुआ कि LDA के पास एक स्पोर्टेज और एक हुंडई टोसन समेत कई गाड़ियां मौजूद ही नहीं। इन गाड़ियों के गायब होने की वजह से सरकारी खजाने को 9 करोड़ 22 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा है। हैरानकुन बात यह है कि LDA इंतजामी डायरेक्टोरेट के पास इन गाड़ियों का रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। LDA हुकाम और एहतसाबी इदारे अभी तक लाइल्म हैं कि ये गाड़ियां कहां और किसके ज़ेरे इस्तेमाल हैं। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। बाइकर लैन के पायलट प्रोजेक्ट से पेंट उतरने का मामला, DGLDA का नोटिस, कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। तकनीकी टीम को भी मामले की तहकीकात की हिदायत जारी की। बाइकर्स लेन पायलट प्रोजेक्ट के कुछ हिस्से पर लगे पेंट के जल्द उतरने की शिकायत। DGLDA ताहिर फारूक ने मामले का नोटिस ले लिया। LDA तर्जुमान के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया। पेंट के मयार की जांच के लिए टेक्निकल कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। LDA के मुताबिक बाइकर्स लेन के पायलट प्रोजेक्ट में टेस्ट रन के तौर पर मकामी मैन्युफैक्चर्ड पेंट इस्तेमाल किया गया, जिस पर 1 साल की मेंटेनेंस गारंटी दी गई थी। कॉन्ट्रैक्टर कंपनी मुफ्त में पेंट की मुरम्मत करने की पाबंद है। इसने मुतासर हिस्से पर दोबारा काम भी शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर पेंट पर करोड़ों रुपए लागत आने की खबरों की वजाहत करते हुए तर्जुमान LDA ने वाज़ेह किया कि ये मंसूबा कम कीमत में मुकम्मल किया गया। मकामी पेंट की लागत 153 रुपए फी मुरब्बा फुट है, जबकि इम्पोर्टेड पेंट की लागत 1270 रुपए फी मुरब्बा फुट है। अगर इम्पोर्टेड पेंट इस्तेमाल किया जाता तो लागत में 8 से 10 गुना इजाफा हो जाता। LDA हुकाम के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट के बगैर कोई अदायगी नहीं होगी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जो खवातीन मोटरसाइकिल चलाना चाहती हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए। चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने सरकारी तौर पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मुखालिफत की। इलेक्ट्रिक बसें प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने की तजवीज़। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतालिक केस। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। CTO लाहौर अदालत में पेश हुए और लाहौर का ट्रैफिक प्लान रिपोर्ट की सूरत में पेश किया। अदालत ने इस्तफसार किया कि चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ट्रैफिक प्लान क्या होगा। CTO लाहौर ने जवाब दिया कि टीमों की मूवमेंट के वक्त कुछ मिनट के लिए ट्रैफिक रोकेंगे, मैचेस के दौरान ट्रैफिक की रवानी मुतासिर नहीं होगी। अदालत ने CTO लाहौर के इकदामात की तारीफ की और कहा कि ट्रांसपोर्ट न रखने वाले स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन रोकी जाए। CTO लाहौर ने कहा कि इस हवाले से काम नहीं किया जा रहा। ऐवान अदल समेत दीगर मार्केटों में पार्किंग के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। हुकूमत को ट्रैफिक की बेहतरी के लिए 20 तजावीज भिजवाई हैं। CTO ने तजवीज दी कि इलेक्ट्रिक बसें सरकारी तौर पर नहीं, प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जाएं। लग्जरी गाड़ियों के मालिकान और सरकारी गाड़ियों की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर माल रोड की सफाई करवाई जाए। ई चलान जमा न करवाने वालों को सरकारी सर्विसेज ना दी जाएं। CTO लाहौर ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि हॉर्स एंड कैटल शो के दौरान 25,000 शहरी आए, कहीं ट्रैफिक जाम नहीं हुई। कितनी देर से अभी हॉर्स एंड कैटल शो के इवेंट्स हुए हैं। 25,000 लोगों का एक इवेंट हुआ फोर्ट्रेस में। कोई डाइवर्शन आपने देखी, कोई ब्लॉकेट देखा, कोई नाका देखा? न्यू ईयर जिस दिन मैंने चार्ज लिया उससे 3-4 दिन बाद न्यू ईयर था। न्यू ईयर के ऊपर नाका देखा? कोई नहीं देखा। तो नाकों के बगैर और छापों के बगैर भी पुलिस काम कर सकती है और अच्छा काम कर सकती है। अदालत ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों से अमल दरामद रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत आइंदा जुम्मे तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़।